So welcome everybody to lecture number 19. Okay. Fine. So first things first, there were two questions which we had to discuss before moving forward with the concepts. So these are those two questions. So let's first discuss them. All right. Fine. Let's see. Why is the template changing? Okay. Okay, this is what we want. Fine. All right. Okay, so let's read this question and let's see how to proceed with this. So there is a result called Chebyshev's inequality states that for any probability distribution, कोई भी अगर आपको probability distribution दिया हुआ है of a random variable x and you have a number k that is at least, one, that is at least 1, मतलब k की वैल्यू जो है k वैल्यू is at least 1, मतलब greater than or equal to 1. ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो ये प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रैंडम वेरिएबल माइनस द मीन वैल्यू if this value is greater than equal to k times sigma, this is less than equal to 1 by k square. This is a result and this result is called the Chebyshev's inequality. मतलब बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, मान लो के की वैल्यू 1 है, ठीक है, सपोज के वैल्यू इज 1, सपोज के वैल्यू इज 1, तो व्हाट विल दिस इनइक्वालिटी बिकम? ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी? द प्रोबेबिलिटी दैट माय एक्स वैल्यू minus mu, the magnitude of this is greater than equal to sigma, that is less than equal to 1, right? This is what we are going to have. ठीक है, तो ये जो अंदर इनइक्वालिटी दी हुई है इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो ये क्या बन जाती है? इफ यू नो दैट मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, सो व्हाट इज दिस? एक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन ए और एक्स वैल्यू इज लेस देन माइनस ए, यस और नो? राइट, है ना? तो अगर मैं इस चीज को एक्सपैंड करूं तो ये क्या हो जाएगी कि मेरा जो रैंडम वेरिएबल है x माइनस म्यू, दैट इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा और माय x वैल्यू माइनस म्यू इज लेस देन इक्वल टू माइनस सिग्मा, राइट? तो ये जो चीज है क्या है कि मेरी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा और x इज लेस देन इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा, इस
या तो मेरी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ये हो या ये हो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1. And it makes sense, right? My random variable taking when value between any two numbers is obviously less than equal to 1, right? And similarly, जैसे जैसे ये k की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ये जो नंबर है इट्स गोइंग टू टेक अ स्मॉलर एंड स्मॉलर नंबर. सो जैसे मान लो अगर k की वैल्यू 2 हो गई, if k value is 2, so what does this probability become? कि मेरा random variable is taking value mu plus 2 times sigma, or x value is less than equal to mu minus 2 times sigma. This has to be less than equal to 1 by 2 squared. Okay. Similarly, the probability that random variable is greater than mu plus 3 sigma, or x is less than equal to mu minus 3 sigma, that has to be less than equal to 1 by 3 square. This is what this inequality is saying. ठीक है, कि मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरीके का हो, if your distribution, let's say, looks something like this, if your distribution looks something like this, and let's say this is the mean value, तो आपका रैंडम वेरिएबल k टाइम्स सिग्मा वैल्यू एंड माइनस k टाइम्स सिग्मा वैल्यू ले, मतलब आपका रैंडम वेरिएबल वैल्यू इस एरिया में ले या फिर इस एरिया में ले, इसकी प्रोबेबिलिटी की अपर लिमिट बता देती है ये इनइक्वालिटी, कि इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस नंबर से बराबर या इस नंबर से छोटी होगी. दिस इज व्हाट दिस इनइक्वालिटी इज सेइंग. ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया? मैम और का मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी प्लस करना होता है ना? हाँ जी, या तो ये होना चाहिए और ये, both. प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट. Probability of this union this, and if they have nothing in common then they will get added, so you'll have to treat it like a union. ओके. Okay, so that's what we are saying. तो ये तो probability, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, और in words क्या होगा? The probability that the value of x lies at least k standard deviation away from mean is at most 1 by k square. कि आपका random variable k distance पे हो from your mean, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड के डिस्टेंस पे है फ्रॉम योर मीन, उसकी प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू बता देती है ये इनइक्वालिटी. ठीक है, इसको बोलते हैं चेबीशेव इनइक्वालिटी. अच्छा, ये चीज समझ आ गई? यस मैम. फाइन. मैम वो अपर वैल्यू वाला समझ नहीं आया. मतलब ये माइनस के से इस तरफ का मैम एरिया बताता है ये आपको बता रहा है कि आपका रैंडम वेरिएबल या तो इससे बड़ी वैल्यू ले या तो इससे छोटी वैल्यू ले, मतलब योर रैंडम वेरिएबल्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन हैज टू बी ग्रेटर देन k सिग्मा. इसका मतलब तो यही है ना कि मेरे रैंडम वेरिएबल का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन हैज टू बी ग्रेटर देन k सिग्मा, है ना? यस. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये बता देता है, दैट इज 1 by k स्क्वायर. ठीक है, ओके. तो आपका रैंडम वेरिएबल यस. भी हो सकता है, इट कैन बी ऑन द अपर साइड एज वेल और इट कैन बी ऑन द लोअर साइड एज वेल, राइट? कि अगर रैंडम वेरिएबल यहाँ है तो मीन से उसका जो डिस्टेंस है वो k सिग्मा से बड़ा ही है, और अगर आपका रैंडम वेरिएबल यहाँ है तो भी उसका डिस्टेंस आपकी मीन वैल्यू से k सिग्मा डिस्टेंस से बड़ा ही है, राइट? यस. तो इस प्रोबेबिलिटी की एटमोस्ट वैल्यू, अपर लिमिट बता देती है ये प्रोबेबिलिटी, कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है बट इसके ऊपर नहीं जाएगी ये प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ओके. ऑल राइट. सो नाउ दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अपर बाउंड. ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है व्हेन k is 2, k is 3, k is 4, k is 5, k is 10. तो वो जो प्रोबेबिलिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है? तो k की वैल्यू 2 है तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4. 1/4. k की वैल्यू 3 होगी तो कितना होगा ये? 1/9. k की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा?
1/16, 5 होगी तो क्या 1/25, k की वैल्यू 10 होगी तो क्या होगा 1/100। तो आपने अपर बाउंड बता दिया, और अपर बाउंड इज गिवन बाय दिस 1/k²। ठीक है, फाइन, कैन वी डू दिस? Yes. ओके, Yes, ma'am. ऑल राइट, फाइन। अब अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13। Okay, now what is exercise 13? Then evaluate this for the value of k, which is given in part A. What does this suggest about the upper bound relative to the corresponding probability? Okay, so what is exercise 13? Which question, कौन से chapter से था ये question? Ma'am, chapter 3. 3. Any idea about which section? 3.3. 3.3. So 3.3, we have to look at exercise number 13. But I don't see an exercise 13. Ma'am, exercise section 3.2. 2 में है, okay. 13, 10, 11, 12, 13. Okay. All right. So what is question number 13 saying? This is exercise 13. ठीक है, तो the 13 question is a mail order computer business has 6 telephone lines. Let X be the number of lines that are in use at any specified time. This is the PMF of X. This is given. ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला है हमें? Compute the value of mu and sigma for the distribution of exercise 13. तो पहले तो इस distribution के लिए mean value और variance value निकालो. Have you found the mean value and standard deviation sigma? ये वैल्यू हमने निकाली है क्या? तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? We will just multiply the x value with respective probabilities, right? तो आपकी मीन वैल्यू कितनी आएगी? Yes. किसी ने निकाला है कि नहीं निकाला है? नहीं निकाला? निकाला है, बस एक बार चेक कर लेती हूँ। चलो, वो आ रही थी ना 3.2 का था। ठीक है, ये होगा मेरा आंसर मीन का, ये जो भी मैं सॉल्व करके निकालूंगी। और मेरी जो वेरिएंस वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर, वो क्या हो जाएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, राइट? तो मुझे फिर से एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, और इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आएगी। उसमें से आप माइनस करोगे ये जो भी मीन आएगा म्यू एंड द होल स्क्वायर ऑफ इट, राइट? Yes, ma'am. तो मीन और वेरिएंस तो निकाल लेंगे, ठीक है। आई विल जस्ट यूज द नंबर्स विच दे हैव गिवन and you can do it in your own time by solving it. Question number 13, right? So the value will be okay. So the mean value mu is going to be 2.64
and sigma square will be 2.3704 and hence sigma will be 1.54. ठीक है? Okay, these are the values that you're going to check. You can cross verify if you are getting the same things or not. ठीक है? मीन और वेरिएंस निकाल लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. Yes, ma'am. ठीक है? सो आप Yes. मीन निकाल लिया और आपने वेरिएंस भी निकाल लिया. ठीक है? और स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लिया. तो अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला कि फर्स्ट यू फाइंड द मीन वैल्यू एंड द वेरिएंस वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू, and then evaluate this particular probability. ये probability निकालो for the values of k which are given in this part. तो ये जो पार्ट ए में k वैल्यूज दी हुई है ना, इसके लिए ये probability निकालो. ठीक है? तो इसका मतलब आपको क्या बताना पड़ेगा, and what does this suggest about the upper bound relative to the corresponding probability. ठीक है? चलो, तो मेरी जो probability है वो क्या बोल रही है. हाँ जी, मेरी जो probability है, so the numbers that I had were 2, 3, 4, 5 and 10. K value 2, K value 3, K value 4, K value 5 and K value 10. ठीक है? तो मेरी probability that my X value is greater than or equal to mu plus K times sigma, or mu X value is less than equal to mu minus K sigma. ये जो probability है ये कितनी होगी, 1/k² से कम होनी चाहिए. राइट? ठीक है? Yes, ma'am. तो अब आपको म्यू वैल्यू भी पता है. म्यू वैल्यू यू नो द सिग्मा वैल्यू ऑल्सो एंड यू नो द के वैल्यू ऑल्सो. तो आप ये वैल्यू और ये वैल्यू निकाल सकते हो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के. Yes. है ना? जैसे Yes, फॉर ma'am. एग्जाम्पल के की वैल्यू 2 के लिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं, रेस्ट यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंग टू द सेम पैटर्न. ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है, 2.64 प्लस 2 टाइम्स 1.54, और x value is less than equal to mu minus okay, mu here is 2.64 minus 2 times 1.54. ये जो probability है this will be less than equal to 1/4. right? तो आप इसको जब solve करोगे तो क्या आएगा, probability that random variable x is greater than equal to what? So 2.64 plus this is 3.08, or x is less than equal to 2.64 minus 3.08. This has to be less than equal to 1/4, right? तो ये कितना Yes, है? This is 5.72, 5.72. है ना? And x is less than equal to, what is this difference? Minus 64 and 8, which is again 4. 0.44, 4. 36 and 8, right? 36 and 8, yeah, 0.44. तो इसकी probability has to be less than equal to 1/4, right? तो Yes, आपका ma'am. random variable minus 0.44 से छोटी वैल्यू ले और 5.72 से बड़ी वैल्यू ले, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए. ठीक है? लेकिन इस चीज को तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये चीज करेक्ट है कि नहीं. राइट? तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल है इस केस में वो क्या था, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था. जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. राइट? जिसकी वैल्यू Yes. 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 हो सकती है. ठीक है? तो x की वैल्यू लेस देन माइनस 0.44 हो सकती है क्या कभी भी? नहीं, No. नहीं हो सकती.
एंड एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 5.72, तो इसमें कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे? विच पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड? 6 विल बी इंक्लूडेड, राइट? ओनली 6, yes है ना? तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.04, Yes, ma'am. राइट? yes तो ये जो पूरी चीज है, ये बेसिकली मेरे पास क्या आ गई? Probability that my x value is 6 and this has to be less than equal to 1/4. And what is yes probability that x value is 6? 0.04. 04. Is that less than 0.1? Is that less than 1/4? Yes, 0.2, Yes. है ना? तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि ये एक्चुअली करेक्ट है, ठीक है? yes ओके, अब सिमिलरली आपको क्या करना है? जैसे ही के की वैल्यू अलग अलग होती जाएंगी ना, आपको ये वैल्यू आपके पास एक अपर बाउंड आएगा, एक लोअर बाउंड आएगा, आपकी वैल्यू उससे बड़ी और उससे छोटी किस किस लेवल पे होगी वो आपको बताना है, ठीक है? सो नाउ व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द अपर बाउंड रिलेटिव टू द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी? तो ये आपको क्या बताता है कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस फ्रॉम योर स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ता है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी का जो अपर बाउंड है वो कम होता है कि बढ़ता है? कम हो रहा है. कम हो रहा है, राइट? तो बेसिकली एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मान लो के की वैल्यू यहाँ पे 1 थी तो ये सिग्मा हो गया, 2 होती तो ये डिस्टेंस और दूर हो गया, 3 होती तो ये डिस्टेंस और दूर हो गया। तो धीरे धीरे आप अपनी प्रोबेबिलिटी जो है उसका अपर बाउंड छोटा ही तो करते जा रहे हो, बिकॉज यू आर अलाउिंग फॉर वेरी लेस नंबर्स इन दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट, राइट? Yes, ma'am. सो व्हाट आर वी सेइंग कि जैसे जैसे मेरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है के की, मतलब कि मैं अपने मीन वैल्यू से कितने स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्टेंस पे हूँ, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ रही है मेरा अपर बाउंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग डाउन, ठीक है? दैट्स व्हाट वी हैव। फाइन, Yes, ma'am. yes ओके जी, वेरी नाइस, ठीक है, ऑल राइट। सो दिस इज डन। सो सिमिलरली यू कैन डू द रेस्ट पार्ट्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के एज वेल, ठीक है, कर लेंगे। Yes, ma'am. Okay, now what is part C saying? Let x has possible values -1, 0 and 1, ठीक है? तो इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जिसमें एक रैंडम वेरिएबल है जो वैल्यूज क्या लेता है, -1, 0 एंड 1, और इनकी प्रोबेबिलिटीज भी दे दी। व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी? ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एंड हाउ डज इट कंपेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग बाउंड? तो आपको एक तो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है इस चीज की, और फिर ये जो आपकी चेबीशेव इनइक्वालिटी है वो जो अपर बाउंड दे रहा है उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है कि क्या वो इनइक्वालिटी करेक्ट है, वैलिड है, क्या हो रहा है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है? फाइन, चलो, ओके। सो चलो, यू ट्राई टू डू दिस प्रॉब्लम एक बारी विद मी, टेक 2-3 minutes and then try to tell me what is this probability, ठीक है? I'll just pause the recording for 2 minutes and tell me what this number is. Yes. Right. So we've put this distribution, we found its mean value and we found its variance value. ठीक है? Okay. So we have sigma, we have mean. तो ये जो probability है ये कितनी होगी? x minus 0 greater than equal to 3 times sigma. Sigma कितना? 1/3. तो ये जो probability है ये actually क्या है? That the magnitude of random variable x has to be greater than 1, right? तो इसमें कौन कौन से numbers आ गए? If your distribution is -1, 0 and 1. So when is the magnitude greater than 1? oh ma'am 1 p of 1 बस। मैम वो पिछले वाले मेल वाले केस में या
नो बच्चे, ये नया क्वेश्चन है ना। ओके मैम, x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल। हाँ, तो इसमें कौन कौन से वैल्यूज आ गए रैंडम वेरिएबल के? -1 and 1। -1 and 1 बोथ। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/3। So I will have this or this. So I'll just add these two probabilities. Yes, ma'am. यस। So that will be 1/9, 1/9। right? So this is 1/9. ठीक है। और मेरी जो चेबीशेव इनइक्वालिटी थी वो क्या बोल रही थी? उसके अकॉर्डिंग क्या होता? Probability of this particular value would have been less than equal to 1/9 only, Yes, ma'am. है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, Yes, ma'am. but still the inequality is getting satisfied, right? यस। That's how you will do it. ठीक है, कर लेंगे। यस। So the upper bound and this particular probability for this particular distribution, they are the same. ठीक है, हो गया क्लियर? और बताओ। बट मैम ये तो ऑपोजिट आएंगे ना। ऑपोजिट मतलब कैसे? मींस मैम जो शेबीसेव इनइक्वालिटी है दैट इज मतलब 1/9 ग्रेटर है, एंड इसमें इट इज 1/9 इज लेसर, लेसर देन इक्वल टू। My inequality is this ना। यस मैम। तो यहाँ पे k की वैल्यू मैंने 3 रखी, तो ये वैल्यू 1/9 आ गई। यस मैम। तो मुझे इस प्रोबेबिलिटी का अपर बाउंड मिल गया ना कि भाई 1/9 या उससे छोटी होनी चाहिए। ओके, तो ठीक है। मेरा आंसर भी तो उसी चीज को फॉलो कर रहा है, राइट? राइट। तो मेरी वैल्यू 1/9 आई। बट हाँ ठीक है, देन ऑल्सो माई चेबीशेव इनइक्वालिटी इज वैलिड, राइट? इट इज गेटिंग। राइट। ठीक है, ओके जी, वेरी नाइस। और फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने क्या लिखा है? गिव अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच probability that x minus mu magnitude is greater than 5 times sigma is equals to 0.04. तो इसमें आपको कोई एग्जाम्पल बिल्ड करना है। तो मान लो आपकी मीन वैल्यू 0 है, ठीक है, और वेरिएंस वैल्यू अगर 1 हो गई तो क्या होगा? अब मुझे एग्जाम्पल ही बिल्ड करना है ना, तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, राइट? तो मान लो मेरी मीन वैल्यू, सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन वैल्यू 0 है और वेरिएंस वैल्यू 1 है, ठीक है। और मेरे को एक्चुअली क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस म्यू this is greater than 5 sigma, this has to be less than equal to how much? Okay, this has to be equal to what? 0.04, right? यस। 0.04, ठीक है, 0.04। तो मेरी चेबीशेव इनइक्वालिटी के हिसाब से मेरा जो अपर बाउंड है वो क्या आना था? 1/k², k इज 5, तो 5² 25। व्हाट इज 1/25? 0.04 ओनली, है ना? तो मतलब मेरी अपर बाउंड के बराबर ही वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ बिल्ड करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी, अगर मेरा एग्जाम्पल ये है, आई एम टेकिंग दीज सो दैट आई कैन सिंप्लीफाई द सिचुएशन, ठीक है। तो magnitude of x has to be greater than equal to 5, this probability should be 0.04, ठीक है। ओके, तो मान लो कि आपका कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है x, अब उसमें ना आपको वैल्यू जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि मीन 0 आए और जो वेरिएंस है वो 1 आए। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मीन 0 आने का मतलब क्या है?
कि प्रोबेबिलिटीज मान लो इक्वली, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक रखोगे तो मीन वैल्यू 0 आ सकती है, राइट? मतलब कि एक नंबर दे दो 0, एक नंबर दे दो 1, एक नंबर दे दो -1, एक नंबर दे दो 2, एक नंबर दे दो 3, सॉरी -2, -3, -4, -5, 3, 4, 5। और यहाँ पे सब जगह ना, इसको जो प्रोबेबिलिटी दी है उसको यही प्रोबेबिलिटी देंगे, इसको जो प्रोबेबिलिटी दी है उसको सेम प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोबेबिलिटी, सेम सेम। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, राइट? या फिर हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, वी कैन डू वन मोर थिंग। दिस विल बी कॉम्प्लिकेटिंग द सिचुएशन टू मच। मैम प्रोबेबिलिटी का सम भी फिर 1 के इक्वल। हाँ, वो तो हम लोग कर लेंगे, 1 के इक्वल रख लेंगे। और सिग्मा वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हैज टू बी 1, राइट? यस। बिकॉज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर -0 होल स्क्वायर, दैट बिकम्स 1। तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो भी 1 देनी है, ठीक है? ओके जी। सो व्हाट कैन आई डू? या तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर लेते हैं। एक चीज ये देखो, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा होता है? सिमेट्रिक होता यस है ना? तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो मेरा कोई एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और उसकी पीडीएफ वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/b-a, राइट? whenever it is between a and b, and rest everywhere it is 0, ठीक है? ओके। तो अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े उसके लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? my x value minus what is the mean value of a uniform distribution? a plus b divided by 2, right? यस मैम। तो इसको a plus b divided by 2 लिख दिया, ठीक है? इसका magnitude has to be greater than 5 times what is the variance value of a uniform distribution? One by 12. What was that? 1 by 12 b minus a whole squared, right? Is it, or was it something else? I think it was 1 by 12. I think हमने निकाली हुई थी, just let me check. I have also forgotten now. A plus b by 2. काफी पढ़ाई कर ली हमने। Yeah, so this was, yeah, b minus a whole square divided by 12. This was the variance for a uniform distribution. So 5 times sigma b minus a whole squared. This was the variance value, right? तो standard deviation sigma कितना हो जाएगा? b minus a divided by square root of 12, right? यस मैम। b minus a divided by square root of 12. और इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे लेके आनी है? 0.04,
तो मैं अपनी ए और बी वैल्यूज इस तरीके से चूज कर सकती हूँ कि ये शायद इस तरीके का कोई नंबर आ जाए. तो दैट्स बेसिकली व्हाट माय गेस इज, कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स वैल्यू is greater than equal to 5 by square root of 12 times b minus a plus a plus b divided by 2. ये वैल्यू हो जाए और x value is less than equal to 5 divided by square root of 12 b minus a plus b minus a plus b divided by 2. राइट, ये कितना होना चाहिए, 0.04. ठीक है, और ये जो भी वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू है, वट एवर दिस इज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? हाउ डू यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी फॉर अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का CDF क्या होता है? x माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, राइट? दिस इज द कैपिटल F ऑफ x वैल्यू, राइट? यस ठीक है, तो अब मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए, और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है. तो मैं कोई भी एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. सो इट्स लाइक सेइंग दैट दिस इज माय डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये मीन वैल्यू है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. आप सेम नंबर ऐड कर रहे हो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी सम कर दो, राइट? यही बोल रहे हैं. यस दिस इज a प्लस बी बाई 2. इसमें आपने क्या ऐड किया, ये, और यहाँ पे आपने, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, यही वाला नंबर. तो आप a प्लस बी के इस तरफ और इस तरफ जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, दिस, यस into 2. है ना? तो आप कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हो, ये वाली, और ये वाला जो एरिया होगा ये एग्जैक्टली उसका सेम ही होगा, बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस वैल्यू इज a एंड दिस वैल्यू इज b, राइट? Yes, ma'am. है ना? तो कोई भी एक वैल्यू निकाल लो यूजिंग दिस. तो मुझे ये वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू निकाल लेती हूँ CDF से, और फिर उसको डबल कर देंगे. ठीक है, तो x की वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ जाएगी, ये. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी इज 2 टाइम्स दिस. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 b माइनस a. ठीक है, ये तो क्या हुआ, x माइनस x ही हुआ ये तो. इसमें से a माइनस करना है और इसको डिवाइड करना है b माइनस a से, और ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए, 0.04 के बराबर. ये काम है. ये चीज समझ आ गई? Yes, ma'am. ठीक है, तो this is just an attempt. We don't know if we will be successful in this, but let's see. मैम एग्जाम्पल मतलब सॉल्यूशन में p ऑफ -1 p ऑफ +1 एंड 0 करके दे रखा है, तो मैम उसे मतलब याद रख के क्वेश्चन में सीधा डाल सकते हैं. अगर आपको वो याद होता है तो याद कर सकते हो, बट अगर और इन्होंने मैम इसमें और, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसलिए. हाँ मतलब they won't ask you to generate examples like this, but Yes. if you remember examples like that, if they change something na, you won't be able to create it anything new. मतलब exactly same question आ गया तो कर लोगे, लेकिन Okay. उसके अलावा कुछ भी हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, राइट? Yes. तो मतलब यहाँ से हम सिर्फ एक तरीका सीख रहे हैं कि इस तरीके की अगर कोई चीज दी हुई हो तो उसको कैसे सोचा जा सकता है. ठीक है, Okay. वो भी डिस्कस कर लेंगे, जो आप बोल रहे हो ना वो भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, Okay. ओके. तो फिर अब हम कहाँ, कौन सी स्टेज पे आ गए हैं, कि इसको 2 से जब डिवाइड कर देंगे यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा. एंड हियर व्हाट डू आई हैव, a/2 प्लस b में से a माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, b. ओहो, ये तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हम लोग. b माइनस a/2 माइनस 5 by square root b minus a and then divided by b minus a. तो ये तो मेरा b minus a कैंसिल हो गया, तो मेरे पास तो एक स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा एंड दैट नंबर इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0.02. सो दिस मेथड वोंट वर्क. नो, फेल्ड अटेम्प्ट. यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आई क्या होगा कि जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, राइट? Yes, ma'am. And this number can't be equal to this, right? So that's Yes. the problem that we are facing right now. So this won't work. So maybe we will have to do something else now. तो सोचते हैं थोड़ा सा और. इसकी वैल्यू जो है, हाँ जी, आप क्या बता रहे थे अंशिका? मैम सॉल्यूशन में एग्जांपल दे रखा है. हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 इज इक्वल टू 1/50. 1/50. ओके. Probability of +1 is equal to 1/50. हाँ, And probability of 0 is equal to 24/25. मतलब 48 डिवाइडेड बाई 50. हाँ, तो ये 3 वैल्यूज हैं, ठीक है. Yes. तो अब इसकी मीन वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 0. 0. और वेरिएंस वैल्यू कितनी आ गई, वेरिएंस वैल्यू हमारे पास 2/50. that will be, Fine. so sigma square is actually 2, yeah, 1/50 plus, yeah, so this is 2/50, so this is 1/25, so sigma is 1/5. okay, interesting. ठीक है. नाइस. एंड इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है, 2/50. 50, which is 1/25, which is 0.04, right? Okay, Yes. ठीक है. So probability that x minus mu greater than 5 sigma, this has to be less than equal to, this has to be equal to 0.04. ठीक है. तो इन्होंने बहुत अच्छा खेला. इन्होंने म्यू की वैल्यू 0 कर दी और सिग्मा की वैल्यू क्या ले आए, ये 1/5. ठीक है, ताकि 5 टाइम्स सिग्मा कितना हो जाए, 1. ठीक है, Yes, ma'am. राइट. Yes. और फिर क्या किया, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गई. ठीक है, तो ये 0.04 होना चाहिए, राइट. तो मुझे मीन वैल्यू क्या चाहिए, 0, और वेरिएंस वैल्यू क्या चाहिए, 1/5, है ना. Yes, ma'am. तो इन्होंने क्या किया, 1 और -1 रख लिया ताकि मीन वैल्यू 0 हो जाए. ठीक है, मीन वैल्यू 0 करने के लिए इसको जो प्रोबेबिलिटी दोगे उसको भी यही प्रोबेबिलिटी दे देना, ये करना है. ठीक है, और मीन Yes. वैल्यू 0 चाहिए. ठीक है, और ये वाली वैल्यू 0.04 होनी चाहिए, राइट. तो ये वाली वैल्यू 0.04 कब होगी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी या -1 से छोटी होगी. तो यहाँ पे और यहाँ पे आप इक्वल प्रोबेबिलिटी दे दोगे ताकि सम 0.04 आ जाए, Yes, ma'am. है ना. तो मतलब आपने इसको क्या प्रोबेबिलिटी दे दी, 0.02, और इसको क्या दे दी, 0.02, राइट. Yes. Yes, ma'am. और जब आपने ये किया तो बस आपको वेरिएंस वैल्यू 1/5 आई है कि नहीं वो चेक करना है. तो वेरिएंस वैल्यू 1/5 आने के लिए क्या चाहिए, सिग्मा स्क्वायर शुड बी 1/25. ठीक है,
which is exactly what you want as your expected value of x square, which will be exactly what we are going to get here. ठीक है, so ये 0 पे आपने क्या probability दे दिया, 0. How much is that? 0.04. तो बची हुई कितनी probability होगी? 0.96, right? Yes, ma'am. That's what they have done. तो इसका जब आपने दोनों का probability add किया तो कितना हो गया? 0.04 times 1, जो कि आपकी कितनी वैल्यू होगी? 1/25. तो आपकी वेरिएंस वैल्यू 1/25 हो गई, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू 1/5 हो गई. तो दे हैव ऑल्सो काइंड ऑफ प्लेड विद इट. ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं. ठीक है, मैम अगर एग्जाम्पल देने के लिए पूछा हो तो उसमें डायरेक्ट ये पी ऑफ ये एग्जाम्पल लिख देना या ये पूरा करके दिखाना है? तो आपको शो जो करना आपने पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा कि जो इन्होंने पूछा है वो आपने करके दिखाया है कि नहीं. ओके. मतलब बिकॉज दे आर आस्किंग ना कि दिस शुड बी 0.04, right? So you have to show what is your mu value, what is your sigma value, and it is actually coming out to be 0.04. ये आपको शो करना पड़ेगा. ठीक है, बट मतलब इस तरीके से जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल जनरेट करने में, देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको समझना बहुत आसान चीज है, एक एग्जाम्पल क्रिएट करना बहुत मुश्किल चीज है. तो इस तरीके की चीजें वैसे जनरली एग्जाम में नहीं आती हैं, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन विच इफ इट क्लिक्स यू, इट क्लिक्स यू. आपको मतलब अगर क्लिक हो गया तो 5 मिनट में कर दोगे, और अगर क्लिक नहीं हुआ तो हम चाहे 1 घंटा बैठे रहे, हमें नहीं आएगा ये करना. ठीक है, तो यस. Yes, ma'am. चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? नो. चलो, एक क्वेश्चन और है जो हमें करना था, जो काफी टाइम पहले से ग्रुप पे पोस्टेड था, तो इसको देखते हैं. Now let's see, this is the question. ठीक है, so the question is, show that CDF is a non-decreasing function. Show that f of x is a non-decreasing function. नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, पता है क्या हमें? इन्होंने बता दिया, इन्होंने डिफाइन कर दिया है. क्या मतलब है? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी x1 की वैल्यू, एक नंबर है x1, there is a number x1, yeah, there's a number x1 and there's a number x2. Can I leave and share my internal tomorrow? Yeah, sure, go ahead. Thank you. Take care, bye bye. x1 is less than x2. x1 की वैल्यू जो है वो x2 से छोटी है. ठीक है, ओके. तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जैसे ही आपकी x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, यू विल नेवर हैव दिस सिचुएशन, you will never have this situation. What situation you will never have? कि भाई इसकी फंक्शन वैल्यू बड़ी हो जाएगी और इसकी फंक्शन वैल्यू छोटी हो जाएगी. So you will never have what situation? That f of x1 is greater than f of x2. ऐसा कभी नहीं होगा. नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर x1 की वैल्यू छोटी है और x2 की वैल्यू बड़ी है ना, तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि फंक्शन वैल्यू ऑफ x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन वैल्यू ऑफ x2. तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, मतलब कि f ऑफ x1 की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू हो सकती है f ऑफ x2 के. ठीक है,
कि मतलब जैसे जैसे x1 x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फंक्शन या तो सेम लेवल पे रह रहा है या इंक्रीज कर रहा है, वो कभी नीचे नहीं जा रहा। ये मतलब है नॉन डिक्रीजिंग का। ठीक है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि मान लो एक फंक्शन है विच लुक्स समथिंग लाइक दिस, कि भाई जैसे जैसे एक्स वैल्यू राइज कर रही है, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ये एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या? नो मैम। इट्स नॉट अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, व्हाई? मैम ये डिक्रीज नहीं हो रहा। तो ये नॉन डिक्रीजिंग नहीं है कि है? नॉन डिक्रीजिंग है मैम। नॉन डिक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज नहीं हो रहा, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी दो वैल्यू पिक कर ली, या तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इस वाली वैल्यू से, या फिर वो सेम लेवल पे भी हो सकती है, राइट? ठीक है, तो वो इक्वल हो सकती है एक यस। दूसरे के, या फिर ग्रेटर होनी चाहिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो बड़ी है और आगे जाके कहीं पे ऐसा हो रहा है कि ये वैल्यू छोटी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इट्स स्लोप इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, आइदर पॉजिटिव और जीरो। तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन की खास बात क्या होती है कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो उसका डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जो रीजन है इस रीजन में स्लोप जीरो है ना, यस। और इस रीजन में स्लोप कैसा है? अपवर्ड है। अपवर्ड। right? तो कोई भी ऐसा रीजन नहीं होगा जहाँ पे स्लोप नीचे डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, दैट्स इज द क्राइटेरिया फॉर अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्लियर हो गया? यस। ठीक है, वेरी नाइस। ओके जी, तो अब आपको प्रूव करना है कि सीडीएफ जो है वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब आपको ये चीज प्रूव करनी है, दिस। तो कैसे प्रूव करेंगे फिर बताओ? कर सकते हो वैसे आप। तो देखो, एफ ऑफ x1 का मतलब क्या होगा और एफ ऑफ x2 का मतलब क्या होगा, जरा वो बता दो मेरे को। मैम अगर x1 फंक्शन में पुट करते हैं और x2 को भी फंक्शन पे पुट करते हैं, बट अगर मैम कांस्टेंट फंक्शन है देन x1 चाहे x2 से इक्वली आएगा वैल्यू। ओके, अब इसको मैथ मैथ भूल जाओ, अब स्टैट्स में आ जाओ। ये सीडीएफ है। सीडीएफ की डेफिनेशन, सीडीएफ में अगर कहीं पे हमने x1 लिख दिया तो उसका क्या मतलब होता है? मैम समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी। इसको लिख के कैसे कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, प्रोबेबिलिटी के टर्म? मैम p ऑफ x लेस देन इक्वल टू x1। राइट, और इसको कैसे लिखेंगे? p ऑफ x कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x2। यस। राइट, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि इफ, टू प्रूव, अगर ये जो नॉन डिक्रीजिंग है ना, तो आपको प्रूव क्या करना है कि इफ x1 इज लेस देन x2 implies f of x1 has to be less than equal to x2, f of x2, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, यस। ओके जी। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो x1 इज लेस देन, सो गिवन दैट, आपको क्या दिया हुआ है? गिवन दैट x1 इज लेस देन x2। ठीक है, तो अब ये देखो, मान लो जो भी रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे ये वैल्यू है x1 और ये वैल्यू है x2, राइट? यस। तो मेरे को अगर ऐसा लिखना है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू x2, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, यस। है ना? तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू x2, सॉरी नॉट x2, x1, प्लस प्रोबेबिलिटी that x
is less than equal to x2 and greater than x1? क्योंकि मुझे नहीं Yes. पता मेरा फंक्शन हो सकता है डिस्क्रीट हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो, तो मेरे को इसके बारे में खास ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं कहाँ इक्वल टू लगा रही हूँ और कहाँ नहीं, राइट? Yes. है ना? इसलिए हमने इसको बहुत प्रॉपरली लिखा है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, लेस देन इक्वल टू x1, और फिर इसमें x1 इंक्लूड था तो इसमें x1 मत इंक्लूड करो और इधर x2 इंक्लूड कर लो। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? No. ठीक है, चलो, वेरी नाइस। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस? This is f of x2 and what is this, f of x1 plus Yes. probability that random variable is taking these values, right? Yes. ठीक है, ओके जी। Yes. तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया। Yes, ma'am. और ये क्या चीज है, ये एक प्रोबेबिलिटी है ना? Yes, ma'am. और प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सियम क्या होती है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, वो या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। ये जो भी प्रोबेबिलिटी है या तो ये 0 होगी या तो ये समथिंग Yes, ma'am. पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव तो नहीं हो सकती। No. तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। Yes. Yes. इसका मतलब f ऑफ x2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1 होगी। Yes, ma'am. और मुझे यही प्रूव करना था, Yes, ma'am. तो हमने कहाँ से शुरू किया, यहाँ से, और हम कहाँ तक खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ठीक है, f ऑफ x इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट? ठीक है, Yes. फाइन। इस तरीके से प्रूव करना है, कर लेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक सवाल और पूछा था हमसे, अंडर व्हाट कंडीशंस आर दे इक्वल? तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, तो इक्वल कब होंगे बताओ जरा। मैम, जब P ऑफ x1 लेस देन x, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल। यस मैम। तो इसका मतलब कि जो x1 और x2 नंबर्स हैं उसके बीच में आपका कोई रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट ही ना करे, है ना? मैम, ऐसे भी हो सकता है कि रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट करे बट उसकी प्रोबेबिलिटी ना हो। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ना हो का मतलब रैंडम वेरिएबल वो वैल्यू कभी नहीं लेगा, है ना? यस मैम। और तो कोई सिनेरियो नहीं हो सकता ना जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 हो। प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब वही होता है ना कि रैंडम वेरिएबल वो वैल्यू कभी लेगा नहीं, यस मैम। है ना? तो मान लो मेरा रैंडम वेरिएबल x1 की वैल्यू जो है मेरी वो है 2.5, ठीक है, और x2 की वैल्यू है मेरी 2.8, और मेरा रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू लेता है वो है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो क्या कभी वो इनके बीच में कोई वैल्यू ले रहा है? नो मैम। नहीं ले रहा, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, राइट? यस। तो तो फिर उस केस में क्या होगा, f ऑफ 2.5 विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू f ऑफ 2.8, राइट? यस। दैट इज हाउ यू कैन डू इट। ठीक है जी, कर लेंगे। यस मैम। और कोई डाउट है स्टेटिस्टिक्स में, कोई डाउट? मैम, स्टैटिस्टिक्स में मैम वो फर्स्ट एक्सरसाइज का था थोड़ा सा, एक्सरसाइज 1.1।
हाँ जी वो बताओ। मैंने मैम से पूछा था तो मैम ने बोला कि एक बार उसका रीड कर लेना मैम, इसी में मतलब सेंड किया हुआ है सेक्शन 1.1, एक बार आप वो कर दोगे, जो चैप्टर 1 की पीडीएफ। एक बार आप रेफर कर दो उसको। मैम रीसेंट। हाँ, रीसेंड रेफर जो भी, मतलब यू अंडरस्टैंड ना। Okay, let me check that. Okay, so हाँ जी, which question in this? मैम सेक्शन 1.1 एकदम लास्ट में। अच्छा, लास्ट में। हाँ जी, what about this? मैम उसमें एक दो क्वेश्चंस थे तो मैम ने बोला एक बार देख लो आप। मैंने पूछा था मैम से आ सकता है। Yes, which question? मैम ये येलो मार्क्ड क्वेश्चन। Many university and college have instituted supplemental facilitator means regular. Did you check the solutions? यस मैम। तो फिर भी उसमें भी डाउट है क्या? यस मैम सॉल्यूशन मतलब जितने भी डाउट्स है देखा था बट उसमें कुछ नाम लिख रखे थे बट वो उसमें नहीं थे। Okay, for each of the following hypothetical population, give a plausible sample of size 4, all distance that might result when you throw a football. हाँ, तो बेसिकली आपको कोई भी पॉपुलेशन, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्रिएट करनी है। गिव गिव अ प्लॉजिबल सैंपल ऑफ साइज 4। तो मतलब जब आप एक फुटबॉल थ्रो करोगे तो क्या क्या पॉसिबल डिस्टेंसेस तक वो जा सकता है, तो इसमें से कोई भी 4 एग्जाम्पल दे दो। तो हो सकता है आपका फुटबॉल 1 ही मीटर जाए, या 2 मीटर जाए, या 4 मीटर जाए, या 10 मीटर जाए, राइट? ओके मैम मतलब कुछ भी अपने मन से बनाकर एग्जाम्पल देना है इसमें। एग्जैक्टली, मतलब व्हाट एल्स कैन वी डू? ओके हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मतलब इट्स इमेजिनरी, ओके। एंड गिव अ पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 4। अब मैं बोल दूं कि मैं जब फुटबॉल थ्रो करूंगी तो वो 1 किलोमीटर दूर चला जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? यस मैम।
मतलब मैं थ्रो कर रही हूँ और वो 1 किलोमीटर दूर चला जाता है, इट शुड बी रीजनेबल, मतलब ओके। कॉमन सेंस को फॉलो करके वो होना चाहिए, ठीक है। और मैम सैंपल साइज 4 का क्या मीनिंग है इसमें? सैंपल साइज नहीं है, प्लॉजिबल सैंपल ऑफ साइज 4, मतलब हो सकता है जब आप फुटबॉल थ्रो करो तो कितनी भी बार उसको थ्रो कर सकते हो ना, तो जितनी भी बार थ्रो किया उसमें से कोई भी 4 पॉसिबल वैल्यूज दे आर आस्किंग, ओके। they're asking 4 possible values of this particular population. ओके। Page length of the books published 5 years from now. 5 साल के बाद जो बुक्स पब्लिश होंगी उसकी पेज लेंथ क्या होगी, तो पेज लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, तो आप बोल दो एक 100 यस। पेज की बुक है, एक 150 पेज की बुक है, एक 124 पेज की बुक है, और एक 524 पेज की बुक है, तो ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक और है। मैम लेंथ ऐसे नहीं होगा 21 सेंटीमीटर की है तो आगे 25 सेंटीमीटर की, वो नंबर ऑफ पेजेस पूछे? पेज लेंथ ऑफ बुक्स, आई थिंक पेज लेंथ मतलब पेज नंबर्स, आई थिंक ऑफ बुक्स पब्लिश्ड, पेज लेंथ। मैम वो लेंथ ब्रेथ। अच्छा, मतलब फिजिकल कॉपी का लेंथ, तो उसमें भी कुछ भी दे सकते हो जो एक प्लॉजिबल साइज होता है। ओके। ऑल पॉसिबल अर्थक्वेक स्ट्रेंथ मेजरमेंट दैट माइट बी रिकॉर्डेड इन कैलिफोर्निया ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, तो आपको पता है कि जब अर्थक्वेक को मेजर करते हैं तो एक स्केल होता है, रेक्टर स्केल, राइट, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, आई थिंक 0 से लेके 7 या 8, 6 7 तक। 6 7 तक मैंने भी सुना है, मतलब उसके फाइव पॉइंट beyond- फाइव सिक्स ऐसे कुछ आता है मैम। हाँ, तो कुछ भी पॉसिबल वैल्यू दे सकते हो, 3.3 स्केल का, मतलब बियॉन्ड रीजनेबल लॉजिक नहीं होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे, और उसमें फिर ओके मैम। पॉसिबल एग्जांपल्स, ठीक है। ओके मैम, सेकंड और फिफ्थ हो जाएगा फिर? हाँ जी, फिर सेकंड और फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। और कंसिडर, मैम यस, यस मैम। नहीं नहीं आप बोलो क्या बोल रहे हो। नो मैम मैं कुछ नहीं बोल रही। अच्छा, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कंप्यूटर्स ऑफ अ सर्टेन ब्रांड एंड मॉडल एंड फोकस ऑन वेदर अ कंप्यूटर नीड्स सर्विस while under warranty. Pose several probability questions based on selecting a sample of 100 such computers. What inferential statistic question might be answered by determining the number of such computers in a sample of size 100 that need warranty service? मतलब आपने कोई भी एक कंप्यूटर है जिसका ब्रांड है और उसका कोई एक मॉडल है, ठीक है, उसके कंप्यूटर को सर्विस चाहिए कि नहीं, ठीक है, Yes. while it is under warranty, to pose several probability questions based on selecting a sample of 100 such computers. तो मान लो आपने एक 100 सैंपल्स उठाए उस कंप्यूटर के, तो अब आपको अलग अलग तरीके के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस पूछने हैं कि मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 50% ऑफ कंप्यूटर्स नीड सर्विस, मोर देन 25% नीड सर्विस, नो ओके। कंप्यूटर नीड सर्विस, मतलब समझ रहे हो इस तरीके से, यस। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस पूछने हैं, तो ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछो, ठीक है। यस। और इसका बी पार्ट क्या है, व्हाट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन माइट बी आंसर्ड बाय डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सच कंप्यूटर्स इन अ सैंपल ऑफ साइज 100 दैट नीड्स वारंटी सर्विस। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि आप क्या इन्फर करना चाहते हो, तो आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपका फेलियर रेट जो है, सर्विसिंग नीड लेस देन 50% है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। व्हाट आर द चांसेस कि जो भी आपका कंप्यूटर ब्रांड है वो वारंटी के पहले ही सर्विस उसको चाहिए होती है 50% ऑफ द टाइम्स, इस ओके। तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके।
Question 8 is the amount of flow through a solenoid valve in an automobile's population. Experiments can study how flow and dependent factor T. The resulting data consisted of how many observations? Is this an enumerative study or analytical study? Explain your reasoning. The amount of flow in an automated population control system. Study how it depends on three factors. This. Two different levels, high and low, of each factor were chosen, and a single observation on flow was made for each contribution. तो बेसिकली तीन फैक्टर्स थे क्या? ये लेंथ, स्प्रिंग लोड एंड बॉबिन डेप्थ, और तीनों के लिए ना दो पॉसिबल वैल्यूज थी, हाई और लो, फॉर ईच फैक्टर. तो ये वैल्यू या तो हाई होगी या लो होगी, ये वैल्यू या तो हाई होगी या लो होगी, ये वैल्यू या तो हाई होगी या लो होगी. ठीक है. एंड इनके अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए अ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑन दिस फ्लो वाज डिटरमिन्ड. तो रिजल्टिंग जो डेटा था उसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस थी? तो अगर इसके लिए दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसके लिए दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसके लिए दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो गए? 8. यस 8 के लिए 8 अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए एक एक ऑब्जर्वेशन दे दिया, एक एक नंबर दे दिया, तो टोटल डेटा कितना हो गया? डेटा का साइज 8. 8 यस. तो डेटा साइज इज 8. And now, is this enumerative study or an analytical study? तो ये किस तरीके की स्टडी है? एक्सप्लेन. एन्यूमरेटिव और एनालिटिकल का क्या मतलब होता है? मैम इन्यूमरेटिव में सैम्पलिंग जो फ्रेम होती है वो फिक्स होती है, और एनालिटिकल में मतलब हमारी जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो फिक्स नहीं होगी. ओके. तो इन्यूमरेटिव इसमें सैम्पलिंग फिक्स है कि नहीं? मैम एक्चुअली इसके आंसर में एनालिटिकल स्टडी बताई थी, बट इसमें तो जैसे मैम फिक्स है सैम्पलिंग फ्रेम, एक लेंथ बतानी, एक स्प्रिंग लॉड और डेप्थ. लेकिन ये हाई और लो वैल्यू क्या है वो तो नहीं पता ना. और मैम सैंपल साइज तो जैसे इसमें फिक्स है 8 ठीक है. की ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो ठीक है. मैम सैम्पलिंग फ्रेम फिर फिक्स नहीं हुआ इस केस में. आंसर में एनालिटिक स्टडी बता रखी थी, सैम्पलिंग इसलिए फ्रेम. मैम डाउट था इसमें. सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? सैम्पलिंग कुछ आपकी आवाज जो है वो, चीजों को मैम सैंपल कर रहे हैं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. जैसे कितने मैम मे बी नेटवर्क इशू. ओके, एक बारी फिर से बोलो क्या बोल रहे थे. मैम जैसे कि कितने सिग्नेचर्स हुए हैं कोई भी इलेक्शन में, सम वैसे सैम्पलिंग फ्रेम. ओके. तो सैम्पलिंग फ्रेम जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है? It's basically a list of individuals or objects that is available to be sampled.
Sampling frame is a listing of the individuals or objects to be sampled. It is either available to an investigator or else it can be constructed. For example, frame might consist of all signatures on a petition to quantify a certain initiative for the ballet in the upcoming sample usually selected to a certain whether the number of signatures exceeds a specified value as. Another example, a frame may contain serial numbers of all furnace manufacturing companies. A sample may be used. Sample may be selected to infer something about this. An analytical study is broadly defined as one that is not enumerative in nature, so the objective of improving a future product by taking action on a process of some sort. Only on the existing process, one that may differ in important respect from the future process. There is no sampling frame listing the individuals or objects of interest. For example, a sample of 5 turbines with a new design can be experimentally manufactured, tested, to investigate. The sample of the conceptual population of all the prototypes that can be population of the production that's underway. Okay. So, in this case, क्या है? And the amount of flow through a wall in an automated population control system is an important characteristic. An experiment was carried out to study how flow rate depend on these 3 things. इसको एनालिटिकल स्टडी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो भी इनका ऑटोमेटेड पॉपुलेशन कंट्रोल सिस्टम है ना, वो जो वैल्यूज देगा वो उसकी करंट स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे देगा, राइट? ओके मैम, मतलब फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है। फ्यूचर में ये चेंज भी हो सकता है और ये बेसिकली, हाँ जी एग्जैक्टली तो ये पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम जो है वो किस तरीके की वैल्यूज दे रहा है अभी, दैट इज द सिचुएशन. इट्स नॉट अ फिक्स थिंग, राइट? दैट इज Yes. इट्स एन एनालिटिकल स्टडी. ओके, ठीक है, यस, ऑल राइट. व्हाट एल्स? फर्स्ट प्रॉब्लम. यस। और मैम ये इसमें भी कंसेप्चुअल मतलब मन से बनाकर करनी है, तो मैम सेकंड का पता चल गया। ओके, कंसेप्चुअल और सेकंड में मैम सेम है। मतलब मुझे नहीं समझ आया आपका क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो? और मैम जैसे सेकंड होगा सेम वो फर्स्ट होगा, फर्स्ट मतलब वाली खुद से। रीड करना. ओके, हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब. एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है? इसमें थोड़ा सा सोच विचार है, सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन क्वेश्चन 2. ठीक है, ऑल राइट. यस। Okay, anybody having any other doubts? नो। No? Umang, Priyank, all good? Yes, ma'am. ओके, चलो तो एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद अपने कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, ठीक है? ओके जी, सो लेट्स मीट एट 7:52 and then let's do some of the concepts. ठीक है, all right.